چیف کنزرویٹر جو ہیں بس وہ ود ان اے منٹ پہنچ جاتے ہیں، تو 1 منٹ بعد ہم شروع کر لیتے ہیں اس کو. اچھا چلیں، آل رائٹ، ہاں شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا چیک کر لیں پھر ان کو ادھر لے آئیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد تاکہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے ڈسٹرکٹ شیرانی میں جو فائر آؤٹ بریک ہوا ہے. 12 مئی 2022 کو فارسٹ فائر رپورٹ ہوئی ڈسٹرکٹ شیرانی موسیٰ خیل میں، اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے مزری اور تورغر کا، کوہ سلیمان، کچھ انسیڈنٹ بھی رپورٹ ہوئے زمری کے علاقے میں اور کھجوری کے علاقے میں. اور یہ فائر رپورٹ جو ہوئی ہے یہ تخت سلیمان کا ایریا ہے ان چلغوزہ فارسٹ. اور اب کچھ علاقے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. 12 مئی کو تورغر میں یہ فائر رپورٹ ہوئی جس پر فوری اقدامات لیے گئے پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے اور اس پہ قابو پا لیا گیا. لیکن 20 مئی کو یہ فائر آؤٹ بریک دوبارہ رپورٹ ہوا ان ڈفرینٹ پیچز. اس کے ساتھ ساتھ یہ تورغر اور چمازئی جو فائر جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے اور اس کا سورس اور جو ریزن ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے، اس کی بھی جو وجہ ہے وہ جلد سامنے آ جائے گی. زمری کا جو علاقہ ہے یہاں پر ڈیو ٹو لائٹننگ یہ فائر آؤٹ بریک ہوا. کھجوری کا جو علاقہ ہے یہاں پر ڈیو ٹو لوکل پیپل یہ جو فائر آؤٹ بریک ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے حوالے سے جو لیگل ایکشن ہے وہ لے لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھس رپورٹڈ ہوئی ہیں وہ 3 کے قریب ہیں اور مائنر جو برنز ہیں، انجریز ہیں، وہ 4 ہیں. اس کے 15 جو مسنگ لوگ تھے وہ بھی الحمدللہ ریسکیو کر لیے گئے ہیں. اب میں آتی ہوں جو اسٹیپس ور ٹیکن بائی دا پروونشل گورنمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ سول ایڈمنسٹریشن. انیشیلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اسے انگیج کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل کمیونٹی والنٹیئرز ہیں انہیں بھی انگیج کیا گیا. ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہیڈڈ بائی چیف کنزرویٹر آف فارسٹ نارتھ اینڈ سپروائزڈ بائی کنزرویٹر آف فارسٹ ایڈمن اینڈ کنزرویٹر آف فارسٹ جوب ڈویژن comprising forest officers and field staffs are on site. کمشنر جوب نے 19 مئی کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول روم ایٹ سیکریٹری فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ آفس میں اسٹیبلش کر دیا گیا، اور 2 آرمی کے ہیلی کاپٹر فرام NDMA جو ہیں وہ وہاں پر پہنچا دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ کیمپس آفس ایٹ سرلکی ڈسٹرکٹ شیرانی، سیکریٹری فارسٹ کیمپ آفس ایٹ سرلکی ڈسٹرکٹ شیرانی، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو اسپریڈ تھا وہاں پر باقی جو فارسٹ ایریا ڈپارٹمنٹل اسٹاف اینڈ کمیونٹی والنٹیئرس انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے آن میکنگ فائر لائنز، بیریئرز، اور جو نیسیسری ایکوپمنٹس ہیں وہ وہاں پر پہنچانے شروع کر دیے ہیں. PDMA کی جانب سے جو سپورٹ
वहाँ पर आई। रेस्क्यू टीम 1122 dispatched to site with 3 ambulance, 1 fire truck, 1 van, 1 satellite vehicle और 15 rescue persons। इसके साथ साथ PDMA ने फायर बॉल्स वहाँ पर डिस्पैच किए और जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो भी उनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए। PDMA का कैंप भी सुरलकी डिस्ट्रिक्ट शेरानी में कायम कर दिया गया है टू कंट्रोल ऑफ फायर इक्विपमेंट बीइंग प्रोवाइडेड बाय PDMA। FAO की जो सपोर्ट है वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। जो रिलीफ आइटम्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान आर्मी की टीम FC जो है वो डिप्लॉयड वहाँ पर कर दी गई है फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। इसके साथ साथ वी आर वेरी थैंकफुल to the Honorable Prime Minister for his support and immediate action, and we are also very thankful to the Republic of Iran। उन्होंने हमें फौरी तौर पर एक फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। once again we are very thankful for this aircraft from Islamic Republic of Iran। बाकी भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्हें जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी गई है ताकि मज़ीद कोई टेक्निकल और ऑपरेशनल जो ज़रूरत हमें इस सिलसिले में पड़े वो हमें हासिल हो जाए बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो हाई लेवल की एक मीटिंग कल ऑर्गेनाइज़ हुई थी जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिसंजो, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर मौलाना अब्दुल वासे, ऑनरेबल कॉर्प्स कमांडर जनरल सरफराज, चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट, DG PDMA सब उसमें शामिल थे। और इसके साथ साथ फौरी टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दी गई है for the rescue operation at District Sherani, and we are also thankful to the Prime Minister कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए हैं तमाम प्रोविंसेस को for the necessary measures। अब जो ये फायर आउटब्रेक जो शुरू हुआ इससे पहले भी यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन वो इस एक्सट्रीम पर इस शिद्दत जो थी जो इस बार इख्तियार की है तो पहले इस तरह नहीं हुआ। और जो एक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कुछ दिन जो मज़ीद इसमें लग गए इसे कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ साथ जो वजह थी कि ये आउटब्रेक जो बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हुआ इसकी ख़ास तौर पर जो वजह थी वो ऑफ कोर्स ड्यू टू ड्राउट स्पेल्स और हाई विंड वेलोसिटी, इसकी वजह ये जो असल वजह है वो ये बनी। इसके साथ साथ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनके पास कोई उनकी जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी और जो रिसोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, बाय द चीफ मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सारे जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं विद द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस पर बहुत जल्द जो है वो काबू पा लिया जाएगा। जी, और अभी हमें इंतज़ार है, मैं चाह रही थी कि टेक्निकल जो, हाँ जी प्लीज़, हमारे यहाँ पर चीफ़ कंजर्वेटर ग़ुलाम साहब मौजूद हैं, अली साहब मौजूद हैं, कुछ टेक्निकल हवाले से कुछ डिटेल मैं चाहूँगी ये भी आपके सामने रखें। जी प्लीज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैडम ने कहा कि यहाँ पे पहले भी इस तरह की आग लगते रहे हमारे ज़ियारत में मुसाखिल में, लेकिन वो ज़्यादातर ग्राउंड फायर होती रही है, यानी ज़मीन पर जो घास फूस है या छोटी झाड़ियाँ हैं वो। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ये फायर जो है वो क्राउन फायर में तब्दील हो गई। क्राउन तो क्राउन फायर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक फायर होती है फॉरेस्ट में। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और फिर जहाँ ये लग जाती है वहाँ पे जो हवा है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है और एक लो प्रेशर सिस्टम जो है डेवलप हो जाता है। उस लो प्रेशर सिस्टम को ओवरकम करने के लिए साथ की जो हवाएं चलती हैं तो वो काफ़ी रश करती हैं। और यहाँ भी यही हुआ कि जैसे ही क्राउन फायर शुरू हुई, पहले शुरू में ग्राउंड फायर थी लेकिन बाद में बुशेस के साथ साथ ये क्राउन फायर में चली। क्राउन फायर जब चली तो उसके साथ विंड इतनी हाई वेलोसिटी की चली है कि उसने पूरे जंगल को जो है अपने लपेट में ले लिया। और हम इसके लिए इस तरह तैयार नहीं थे। हम तो ग्राउंड फायर के लिए तैयार रहे हमेशा। हमारे पास जो इक्विपमेंट है, शावर्स हैं या थोड़े बहुत जो फायर एग्जिबिशन है वो ग्राउंड फायर के लिए है। क्राउन फायर के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसने हम अनगार्डेड या ऑफ गार्ड हमें लिया है, इस वजह से ये फैली। और दूसरी वजह यह है कि जिन इलाकों में ये फैली है, अगर आप मैप देखें, ये काफ़ी हायर एलिवेशन पे 5000 से लेकर के 11,000 फीट तक गई है और स्लोप जो है बहुत प्रेसिपिटस स्लोप्स हैं। अगर आप बाकी मुल्कों में भी देखें जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन होती है, प्रेसिपिटस स्लोप पे आग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने एक हिफाजती मजर ये लिया है कि जिस तरफ आग जा रही है उससे आगे हमने फायर लाइन जो है डेवलप की है। अभी 7 से 8 फुट या 9 फुट तक हम ये डेवलप करते हैं ताकि आग मज़ीद ना बढ़े। और ये ज़गुन ज़वर जो एरिया है इसमें ऑलरेडी हम लोग फायर लाइन डेवलप कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसमें अभी हमें जो